Today we'll start a new chapter, Principle of Inheritance and Variation. Okay, this is the chapter 4. Uh, the unit is genetics. So, what is genetics? Genetics क्या है? It is a branch of biology. Let me first tell you what is genetics. It is the branch of biology that deals with inheritance and variation. Now the question arises, what is inheritance and what is variation? Okay, so what is inheritance? Inheritance is the transmission of characters from parents to offspring. From parents to offspring. Okay, and it is the basis of heredity. Okay, now come to variation. What is variation? Variation means the difference between the offsprings and parents. ओके, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. एंड दिस वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट और यू कैन से दैट इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी among individuals. Okay, now so this variation, why it is important? This varies, you know that the variation is the main basis of evolution. Okay, and so let me write down. Variation helps organism adapt to changing environment. So these are the advantages of variation. And what is the second advantage? Second advantage is that it forms the basis of evolution. Okay, now come to the I will tell something about the historical background of genetics. I'm not writing that one. I'll just tell you. Actually, human have practiced selective breeding for thousands of years, and you know that the ancient people domesticated plants and animals which were having the useful traits. For example, your cattle, some special cattle like Sahiwal breed is developed through the artificial selection. But however, scientific explanation of inheritance was unknown that time, and the first person to give the idea about inheritance was Gregor John Mendel. So now we will discuss about some facts about Gregor John Mendel, who is known as the father of genetics. So Gregor
Johann Mendel. He is known as the father of genetics. Okay. Now, he was an Austrian monk. He was an Austrian monk. Okay. And he conducted experiment from 1856, this year is important, to 1863. And he worked in a monastery गार्डन. ठीक है, जहाँ वो पूजा वगैरह करते हैं वहाँ एक गार्डन था, उस गार्डन में वो काम करते थे. ओके, काम मीन्स एक्सपेरिमेंट करते थे, नॉट कि लाइक गार्डनर का काम नहीं करते थे. एंड ही फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ही यूज्ड गार्डन पी, दैट इज पाइजम. अंडरलाइन करना है हमको सेपरेटली, पाइजम सैटाइवम. ओके, अच्छा. एंड ही वॉज द fastest साइंटिस्ट to apply mathematics, statistics, probability and controlled experiment to biological inheritance. Now the question arises, why he selected pea plant? pea plant को ही उन्होंने क्यों चुना? ऐसे तो नहीं कि उन्होंने और कोई प्लांट स्टडी नहीं किया होगा, बहुत सारे प्लांट उन्होंने स्टडी किया, बट अल्टीमेटली ही चूज द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. सो द रीजन इज दैट बिकॉज फर्स्ट वन, it was easy to cultivate, easy to grow, okay, and it has short life cycle, and produced many seeds, means at a time it can produce many progeny. Then naturally self-pollinated and cross-pollination can be done artificially. ओके, तो इसमें नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, बट आर्टिफिशियली हम उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट आर द अदर क्राइटेरियाज? हियर several distinguishable, or you can say observable, contrasting characters were there. Okay, and true breeding varieties available. True breeding अवेलेबल. ये ट्रू ब्रीडिंग क्या है मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा. ओके, अच्छा, ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन होता क्या है? ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन मीन्स it is a plant that continuously produce offsprings
with the same character. After repeated self-pollination. Okay, because self-pollination takes place naturally. So when it is taking place naturally, it produces, because it is self-pollinated, so the same character, there is no variation, same character is produced generation after generation, and this is called true breeding line or pure line. Okay, and they have the and these pure lines have the characteristics of homozygous. So I will tell you what is homozygous. Okay, and they produce identical offspring generation after generation. Now let us see what are the 7 contrasting characters studied by Mendel. 7 contrasting characters studied by मेंडल. ओके, मेंडल ने क्या 7 कैरेक्टर को स्टडी किया था, कौन कौन सा? तो अभी मैं एक टेबल बना के बताती हूँ आपको. सो लेट अस टेक कैरेक्टर. ओके, एंड देन डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव. ओके, इसमें डोमिनेंट यानी जो बाहर से एक्सप्रेस होगा उसको मैं बताऊंगी आपको डोमिनेंट क्या है. तो सबसे पहले आप देख लो कि कैरेक्टर उन्होंने क्या लिया. तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर इज स्टेम हाइट. स्टेम हाइट में 2 ऑल्टरनेटिव होता है, या तो प्लांट टॉल हो सकता है या तो फिर ड्वार्फ हो सकता है, मतलब शॉर्ट हो सकता है. देन नेक्स्ट कैरेक्टर फ्लावर कलर. अगर फ्लावर कलर लेंगे तो या तो फिर फ्लावर वायलेट हो सकता है या तो फिर व्हाइट हो सकता है. ठीक है, फिर फ्लावर पोजीशन. फ्लावर पोजीशन में या तो फिर एक्सियल हो सकता है या तो फिर टर्मिनल हो सकता है. ये हर चीज मैं आपको बताऊंगी. टर्मिनल हो सकता है. देन पॉड शेप. पॉड शेप इन्फ्लेटेड हो सकता है या फिर कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है. ओके, एंड देन पॉड कलर. पॉड कलर ग्रीन हो सकता है या फिर येलो हो सकता है. सीड शेप. सीड शेप क्या हो सकता है? राउंड हो सकता है या फिर रिंकल्ड हो सकता है. ठीक है, देन सीड कलर. सीड कलर येलो या तो फिर ग्रीन हो सकता है. अच्छा देखो बच्चों, ये हो गया आपका 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. अभी मैं ऐसे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या है. एक्चुअली आपका जो हर कोई कैरेक्टर है वो हमेशा जीन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है और जीन हमेशा पेयर में रहता है. ठीक है, तो जीन जो पेयर में रहता है उसको, जीन का जो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं उसको कहते हैं एलील. ठीक है, उसमें से एक होता है डोमिनेंट जो हमेशा एक्सप्रेस होता है, और जो सप्रेस हो जाता है उसको हम बोलते हैं रिसेसिव. तो अगर हम स्टेम हाइट लेते हैं तो टॉल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर. सो इसलिए मैक्सिमम प्लांट आप देखोगे टॉल है और कभी कभार आपको ड्वार्फ प्लांट देखेंगे. इसी तरह आपका जो डोमिनेंट हेडिंग के नीचे लिखा हुआ है ये सारे जो कैरेक्टर है which are express, which are always expressed. ओके, और ये सारे रिसेसिव है. लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ जिसमें आप ज्यादा कंफ्यूज होते हो. देखो आपका स्टेम हाइट नो प्रॉब्लम, टॉल एंड ड्वार्फ. फ्लावर कलर नो प्रॉब्लम, वायलेट एंड वाइट हो गया. देन फ्लावर पोजीशन
इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। देन पॉड शेप, पॉड मतलब फ्रूट, उसका जो फ्रूट है उसको पॉड कहा जाता है। पॉड का जो शेप है इन्फ्लेटेड मतलब फुला हुआ, कंस्ट्रिक्टर मतलब वो मतलब क्या होता है, फ्लैट होता है, उसमें सीड का साइज छोटा होता है। अच्छा, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा आपका यहाँ आता है, पॉड कलर एंड सीड कलर। ठीक है, पॉड के अंदर सीड होता है, पॉड जो है, पॉड इज द फ्रूट। ठीक है, पॉड कलर में डोमिनेंट कौन है, ग्रीन, बट सीड कलर में डोमिनेंट है येलो। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स में आपको पहले बताऊंगी, उसके बाद हम मेंडल का क्रॉस में जाएंगे। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस सम टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ओके। ना सबसे पहले जेनेटिक्स क्या है बता चुकी हूँ, इनहेरिटेंस क्या है बता चुकी हूँ, वेरिएशन क्या है बता चुकी हूँ। नाउ कम टू द अदर टर्म्स, दैट इज सो की टर्म्स। सबसे पहला है जीन। व्हाट इज जीन? जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, and but actually the gene is the segment of DNA that express as protein. Okay, now next term is allele. What is allele? The alternative form of a gene. देखो यहाँ पर आप मान लो स्टेम हाइट ले रहे हो, आपको बॉडी में कितने क्रोमोसोम, ह्यूमन बीइंग का मैं बता रही हूँ, तो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो कि डिप्लॉयड है, उसका क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहता है। सो दीज आर द क्रोमोसोम्स। ओके, नाउ कोई भी कैरेक्टर जिस जीन से रेगुलेट होता है वो कहाँ होता है, दोनों क्रोमोसोम के ऊपर। मतलब मान लो हम स्टेम हाइट ले रहे हैं, तो दोनों क्रोमोसोम में सेम जगह पर आपका जो स्टेम हाइट वाला जीन रहेगा। लेकिन स्टेम हाइट के लिए, फॉर स्टेम हाइट व्हाट आर द टू अल्टरनेटिव? दो अल्टरनेटिव क्या है, टॉल एंड शॉर्ट। ठीक है, और हम इसको लिखेंगे क्या, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सो ये जो कैरेक्टर का दो अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, टॉल एंड शॉर्ट, और जीन को हम लिखेंगे कैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक एलील का स्टेम हाइट के लिए का जो एलील है, हर कैरेक्टर का दो एलील होता है, वो एलील क्या है, एक है टॉल और एक है शॉर्ट। इसको हम लिखेंगे टी, इसको हम लिखेंगे स्मॉल टी। हमेशा याद रखो जो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है उसका फर्स्ट लेटर को आपका कैरेक्टर के रूप में हम लिखते हैं। जैसे यहाँ टॉल है तो हमने कैपिटल टी लिखा, तो जो रिसेसिव ट्रेट है वो शॉर्ट होने पर भी हम उसको स्मॉल टी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलील। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अच्छा, अभी हम चलेंगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप क्या होता है, इट इज द जेनेटिक मेकअप। व्हाट इज जेनेटिक मेकअप? अभी देखो कोई प्लांट अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये प्लांट बाहर से क्या दिखाई देगा, टॉल। ठीक है, बट अंदर क्या है, इसका जीन क्या है, जो दो जीन है वो क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सो दिस इज द जीनोटाइप। ठीक है, जेनेटिक लेवल पे उसका जो कंस्टिट्यूएंट होता है या फिर आप बोल सकते हो जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। अभी फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप इज बाहर से हमको क्या दिख रहा है, प्लांट, टॉल। सो दिस इज फिनोटाइप।
I think it is clear. Okay. So what is phenotype? Fourth one is phenotype. It is the observable character. मतलब जो बाहर से दिख रहा है, और यू कैन से फिजिकल अपीयरेंस. ओके, ये हो गया आपका फिनोटाइप, जीनोटाइप, देन व्हाट वी डिस्कस्ड एलील एंड जीन. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट terminology, that is homozygous. अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, एलील का अंदर एक जीन के दो फॉर्म होते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं. जैसे हम ले रहे हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. मान लो किसी इंडिविजुअल, जिस इंडिविजुअल में, मान लो कोई प्लांट है जिसमें कैपिटल टी मतलब दोनों क्रोमोजोम में, दोनों ही क्रोमोजोम में कैपिटल टी है, या फिर स्मॉल टी है. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, मतलब प्रेजेंस ऑफ सिमिलर एलील. तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर एलील. इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ सिमिलर एलील. ओके, तो ये हो गया आपका होमोजाइगस प्लांट, ये भी हो गया होमोजाइगस प्लांट. ठीक है, सिमिलरली दिस इज फिफ्थ वन. हाँ, सिक्स्थ, हेटेरोजाइगस. हेटेरोजाइगस क्या है, देखो आपका ये जैसे मैंने बताया, प्लांट में क्या था, दो कैपिटल टी दो स्मॉल टी. लेकिन अगर किसी प्लांट में दो क्रोमोजोम में से एक में कैपिटल टी है, एक में स्मॉल टी है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसमें दो डिफरेंट एलील, प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट एलील, दो डिफरेंट एलील. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस कंडीशन. नाउ ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एक्सप्रेस होता है उसको कहा जाता है डोमिनेंट. आई एम सॉरी, डोमिनेंट. दिस इज डोमिनेंट. ओके, डोमिनेंट मतलब क्या है, द एलील which is expressed in heterozygous condition. हेटेरोजाइगस मतलब क्या है, आपका कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट में जीन है दोनों कैरेक्टर के लिए, बट बाहर से कौन एक्सप्रेस हो रहा है, टॉल, दैट इज कैपिटल टी इज एक्सप्रेस्ड. सो कैपिटल टी इज डोमिनेंट. कैपिटल टी इज, just a minute, capital T is dominant. Okay, clear? Now what is recessive? In the above case you can see that capital T is expressed, so the plant is tall, but it has the gene for short also, but short character is not expressed. Okay, so the character, the allele suppressed in heterozygous condition but expressed only in homozygous condition. Only in homozygous condition.
ओके, तो होमोजाइगस कंडीशन में यानी स्मॉल टी होगा, अगर स्मॉल टी है देन ओनली द प्लांट विल बी शॉर्ट. ओके, otherwise short, otherwise I'm sorry, अच्छा स्पेस इज नॉट देयर. ओके, स्मॉल टी अगर है तो प्लांट शॉर्ट होगा. अदरवाइज जब ये दोनों एलील होंगे तब प्लांट कभी शॉर्ट नहीं हो सकता. ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज. द नेक्स्ट कम टू द इनहेरिटेंस ऑफ 1G. ओके, अब देखो आपका जो व्हाट आई से मेंडल ने जो चूज किया था दैट कैरेक्टर, उसके बाद उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किया था. ओके, अभी हम देखेंगे कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट का स्टेप्स क्या था. व्हाट वर द स्टेप्स ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मेथड. इसके बाद हम मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड में जाएंगे. ठीक है, अच्छा, उन्होंने क्या किया, ही सिलेक्टेड 2 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, सिलेक्टेड 2 ट्रू ब्रीडिंग, यानी क्या है, प्योर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या लिया, कैपिटल टी यानी प्योर टॉल होमोजाइगस टॉल लिया और होमोजाइगस ड्वार्फ लिया, ड्वार्फ मतलब शॉर्ट लिया. ठीक है, अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, सो आई एम गिविंग यू स्टेप वाइज. ठीक है, देन ही क्रॉस पॉलिनेटेड दिस. सो लेट मी शो यू. अभी देखो, ही टुक द प्लांट कैपिटल टी, the plant is tall, and another plant small t that is dwarf. Okay, now he cross pollinated this artificially, he cross pollinated. So यहाँ पर उन्होंने क्या किया, क्रॉस पोलिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, तो देखो बच्चों, आप सिर्फ क्रॉस कर देना काफ़ी नहीं होता, तो उसमें आपको लेबलिंग करना भी बहुत जरूरी होता. अभी देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक मेल एक फीमेल गैमेट, मतलब फीमेल प्लांट, मतलब प्लांट का पार्ट हम ले रहे हैं. ठीक है, मेल पार्ट एंड फीमेल, बिकॉज इट इज बाइसेक्सुअल, तो हम मेल प्लांट फीमेल प्लांट नहीं बोल सकते, मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन ले रहे हैं. देन यू नो दैट हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस पोलिनेशन कैसे किया जाता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़े हो, सो नो नीड टू एक्सप्लेन दैट. सो यू हैव टू कलेक्ट द pollen grain फ्रॉम वन प्लांट एंड डस्ट इट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द अनदर प्लांट. तो ये जो 2 प्लांट लिया गया, उसमें से एक प्लांट था प्योर टॉल और एक प्लांट था प्योर ड्वार्फ. तो उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन किया. ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, सीड, उसका जो सीड है उसको कलेक्ट किया. लेकिन यहाँ पर एक जरूरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी बच्चों, जो कि आप गलत करते हो सकता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप नहीं करते, बट डाइहाइब्रिड क्रॉस में आप इसको जरूर गलत करते हो. देखो, ये जो टॉल है, मैंने बोला कैरेक्टर, दे ऑलवेज ऑकर इन पेयर, बिकॉज क्रोमोजोम पेयर में है. तो इसका मतलब कैपिटल टी मतलब ये ऐसे है. ठीक है, स्मॉल टी मतलब ये ऐसे है. ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या किया कि अभी ये जब गैमेट बनाएंगे, गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, मियोसिस से. जब मियोसिस होता है तो ये जो ये टी और ये टी अलग हो जाते हैं, ये तो एक एक गैमेट में ये चले जाते हैं. सो ये हो गया आपका गैमेट. ठीक है, सिमिलरली ये भी क्या हो गया आपका, मियोसिस हुआ, और ये दोनों अलग अलग गैमेट, दिस इज क्रोमोजोम, ये अलग अलग गैमेट में चले गए. ठीक है, दिस इज गैमेट्स. ये कौन सा गैमेट, ये हो गया फीमेल गैमेट, ये हो गया मेल गैमेट. क्लियर. अच्छा, अभी उन्होंने क्या किया, इसको जब क्रॉस पोलिनेशन कर रहे हैं
तो इसका क्या होगा, ये पोलन ग्रेन को इसके ऊपर डस्ट किया, तो ये दोनों का फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, इस क्रोमोजोम के ऊपर कैपिटल टी, इस क्रोमोजोम के ऊपर स्मॉल टी। तो आपको जो प्लांट मिला वो क्या हो गया आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये जो प्लांट है, ये प्लांट, ये जो जेनरेशन है, यहाँ पर जितने प्लांट आए उसको क्या कहा गया, F1 जेनरेशन। ओके, और सारे जो प्लांट थे बाहर से क्या दिख रहे थे, टॉल, बाहर से टॉल दिख रहे थे, बट अंदर से क्या था पता नहीं था, बाद में मंडल ने पता किया। ठीक है, अभी इसको क्या किया, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ये क्या किए थे, क्रॉस पॉलिनेशन। अभी उन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन। अभी आपका F1 जेनरेशन में क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। ठीक है, जो कि बाहर से टॉल दिख रहा था। अभी उन्होंने इसको क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या है, कैपिटल टी इसी का ही पोलन ग्रेन को इसी के स्टिग्मा पे जाकर मतलब पॉलिनेट करेगा। एंड ये क्या हो गया, दोनों का कैरेक्टर सेम रहेगा क्योंकि सेम सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो अभी ये जो गैमेट बनाएगा, क्या गैमेट, ये कैपिटल टी स्मॉल टी सेपरेट हो जाएगा, इसका भी कैपिटल टी स्मॉल टी सेपरेट हो गए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे बच्चों, एक पन्नेट स्क्वायर करेंगे। पन्नेट स्क्वायर क्या होता है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम जो जीनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं पन्नेट स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने दो चीज लिया है, एक मेल एक फीमेल, बिकॉज पोलन ग्रेन ले रहे हैं और एग ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या क्या गैमेट हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ क्या गैमेट हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी इसका इसके साथ क्या होगा, कैपिटल टी, इसके साथ ये क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ ये क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ ये क्या हो गया, स्मॉल टी। क्लियर। तो ये इसमें आपका क्या देख रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड F2 जेनरेशन। ये जो आया आपका F2 जेनरेशन। ठीक है, अभी देखो बच्चों, ये जो है प्लांट, ये प्लांट क्या हो जाएगा आपका, दिस प्लांट विल बी टॉल, ये प्लांट भी टॉल और ये प्लांट भी टॉल। सिर्फ ये प्लांट आपको ड्वार्फ दिखाई देगा। ठीक है, तो बाहर से आपको कितने प्लांट टॉल दिखाई दिए, 3 प्लांट, 1 2 3। ठीक है, और कितने प्लांट शॉर्ट दिखाई दिए, 1। ठीक है, तो इसका मतलब बाहर से दिखने वाला कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। सो इसका फिनोटाइप क्या हो गया, फिनोटाइप क्या हुआ, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। ठीक है, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1। बट अंदर इसका क्या है, आप देखो, अभी हम देखेंगे इसमें, देखो मैं टेबल को ही हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ देखो बच्चों, आपका टॉल, ये जो टॉल है इसका जो एलिलिक कॉम्बिनेशन है क्या है, वो कैपिटल टी। लेकिन ये जो टॉल है इसका एलिलिक कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये भी टॉल है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमारे पास कैपिटल टी कितना है, 1, और कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2। ठीक है, और स्मॉल टी कितना है, 1। तो जेनेटिक मेकअप क्या है उनका, कैपिटल टी। अभी हम जाएंगे, सब जाएंगे जीनोटाइप में कैसे लिखोगे, कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, स्मॉल टी 1 है। सो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1।
ठीक है, आपको सिर्फ रेशियो लिखने से नहीं होगा, आपको पहले इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, देन यू राइट द रेशियो। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अच्छा इस ये जो क्रॉस उन्होंने किया था इसको कहा गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये क्या था उनका? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसका मतलब क्या है? ये जो क्रॉस उन्होंने किया, देखो ये जो क्रॉस है ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दिस वाज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है हम अभी देखेंगे। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स क्रॉस involving one pair of contrasting character। ठीक है, इसका मतलब मेंडल ने कितना कैरेक्टर लिया? 7 कैरेक्टर। इसका मतलब मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। सो आउट ऑफ 7 कैरेक्टर्स between 2 parents, 6 characters are same, and they are differing in only 1 character। इसका मतलब क्या है? देखो, आपको मेंडल ने कितना कैरेक्टर पढ़ा? 7 कैरेक्टर पढ़ा। ठीक है, 7 कैरेक्टर में से 6 कैरेक्टर सेम है एंड 1 कैरेक्टर में वो डिफरेंट है। तो मान लो आपका स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, पॉड शेप, सीड कलर, ये सारे सेम है। सिर्फ प्लांट किस में डिफरेंट है? ये डिफरेंट हम किस में ले सकते हैं? कोई एक का कैरेक्टर, एनी 1 कैरेक्टर। ठीक है, जैसे हमने ये क्रॉस में क्या लिया? हाइट में, ये हाइट में डिफरेंट है। एक कैपिटल टी है तो दूसरा स्मॉल टी है। ठीक है, तो इस तरह का क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी द लॉज फॉर्मुलेटेड बाय मेंडल ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देन आई विल डिस्कस टेस्ट क्रॉस, incomplete dominance and codominance in my next session. Okay, so till then, bye bye, thank you.